Hello and welcome to Kalam IS. This is New Simply Put, dated 16th December 2024, and let's get started. The topics for today are the application of POSH Act on the political parties, Suchir Balaji, and the OpenAI whistleblower issue, and why wheat and edible oil are the real inflation worries now. These can be found in Indian Express, and these are the clippings that can help you locate better. So let's get started. So the issue is about Suchir Balaji. So this is a guy who basically raised his voice detailing the concerns about the copyright issue. So if you have to examine it very easily, just assume that suppose this is one person A and this is one person B. The person B is a teacher and this person A wants to learn everything from teacher, but without the knowledge of the teacher, A takes all the skills, the books, and every other things, the videos, the presentations, everything from A from B, and then learns it all and then replicates it and makes so many copies of B under the name of A that now B's relevance has decreased and now only A will be dominating the market and B will not even realize what happened. It will be very later the realization will happen when all the business has gone from B and things have started come to A. So this is what without the permission of B, the teacher, the things were taken and they were copied and they were then reproduced and the market for B was finished. In a similar way, when you steal the data, so what OpenAI has been doing to train its AI models, it is taking the data that is already there and these are basically copyright data. So firstly, when you take a copyright data, you need permission. So firstly, they didn't take the permission, right? So that is again wrong. That is a violation of intellectual property and the laws. Second, when they took the data, they made copies. So when generally you cannot copy, you can transform the data in a way that it doesn't become a competition to the original, but then you firstly took the data without the permission and violated the IP laws. Then you did not transform the data, you made exact copies, and now you are creating a competition for the existing source. So this actually leads to lack of fair use, and that is exactly what has happened in this case. Now this guy was a 26-year-old person who acted as a whistleblower on all this issue, and ओपन एआई के अगेंस्ट एक केस दर्ज किया गया था just one day before his death or suicide, whatever has been the jargon that has been used. So it's quite in suspicious situations and the world is skeptical about what has happened. So that's the news. Let's get started. So this is an Indian American researcher and a former employee of OpenAI. He basically graduated from University of Berkeley and he was basically working on Chat GPT project. So भाई OpenAI AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए आपको डेटा चाहिए होता है ना, तो वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो कौन लोग कलेक्ट करेगा, इसका काम था डेटा कलेक्ट करना एनालिसिस करने के लिए, राइट। और डेटा ये लोग चोरी कर रहे थे, मतलब जो कॉपीराइट है बिना पूछे ये लोग ले रहे हैं, राइट। सो इसलिए एलिगेशंस लगाए गए हैं कॉपीराइट वायलेशन के। ठीक है, वायलेट कॉपीराइट लॉ इन सोर्सिंग द डेटा, लाइक एज सोल्ड, सोर्स कर लिया है डेटा, पूछा भी नहीं है, परमिशन भी नहीं ली है, और उसके बाद कॉपी बना लिया, अनऑथराइज्ड कॉपी फॉर ट्रेनिंग इट्स मॉडल्स। सो बेसिकली वायलेशन किया है एंड उसकी बेसिकली कॉपीज बनाई है। सो दिस इज बेसिकली द एलिगेशन अगेंस्ट ओपन एआई। कंसर्न्स वही हैं फिर जनरेटिव मॉडल्स के बारे में कि सब्सिट्यूट बना देते हैं, तो डिस्प्लेस कर देंगे ओरिजिनल कंटेंट को। सोचिए सारी मार्केट खत्म हो जाएगी, केवल एक ही के पास बिजनेस रहेगा, ओपन एआई, बाकी सबकी दुकानें बंद हो जाए। इमेजिन हाउ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल बिकम, हाउ द लैंडस्केप ऑफ द बिजनेस सिनेरियो विल बिकम, राइट। एंड बेसिकली फिर ये जो डिस्प्लेस करेंगे ओरिजिनल कंटेंट को, तो जो नया कंटेंट बनाएगा बेसिकली उसको बोल रहे हैं ही हाईलाइटेड द रिस्क्स ऑफ हेलुसिनेशंस वेयर एआई प्रोड्यूसेस नॉनसेंसिकल और फॉल्स इन्फॉर्मेशन पोटेंशियली मिसलीडिंग द यूजर्स, एंड बेसिकली दिस could act as a competition because it is competing with the original data, right? So this is what these things have happened. And what is OpenAI's response? So basically, of course, OpenAI has dismissed and said that we are using it on a fair use basis, and they have said that we are basically transforming the data in a way that it is very non-competent, right? And it is not that we are directly copying. In fact, we have support from legal precedents for their practices, right?
इन दिसंबर 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स में बेसिकली काफ़ी सारे लोगों ने इनफैक्ट ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट फाइल किए थे केसेस, सेवरल पब्लिशर्स। सो एक बैकग्राउंड है, पहले से कुछ कुछ चीज़ें ऐसे चल ही रही थी। अभी ये सुचीर बालाजी की डेथ की वजह से नाउ देयर इज़ अ वेरी न्यू एंगल टू इट, that it highlights the amount of pressures the tech industry is facing, right? When it comes to life and when it comes to business and when it comes to um, dealing with issue of privacy and data principles and accountability and transparency. So these are the new issues that have come up, right? So this is what the whole thing is, that he has died, and this has basically raised the issues about the pressures, and this is going to create a further discourse on the ethical practices. This is the news. And let's get to the applicability of POSH Act to the political parties. So the point is that this is found in the Indian Express Explained section. Now we all know what is a POSH Act. It is created for the safety of women from sexual harassment. But what does it really include? It says that if any company has more than 10 workers, and it could be any workplace, not a company as such. The workplace could be public or private, but if there is any place where there are more than 10 workers, then the company itself or the workplace itself would have to form an ICC, right, which is the internal complaint committee. And if there are less than 10 people in the workplace, then जहाँ आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, वो एरिया बेसिकली एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा, जहाँ पे आप ये सारे जो कंप्लेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है आफ्टर दे हैव बीन रिसीव्ड. सो एक स्ट्रक्चर बनाने की बात करता है एक पॉश एक्ट, ठीक है, कि अगर आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी, एंड ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ अनहर्ड रहेगी. तो कंपनी बनाने के साथ साथ फिर उन कंपनी में जो लोग हैं उनकी ड्यूटी है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करे कि इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर देम टू मेक अ कंप्लेन एंड ब्रिंग द इशू फॉरवर्ड, राइट. साथ में और क्या क्या आपको पॉश के बारे में पता है? ऑफकोर्स सबकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्टेड रखते हैं, राइट. पेनल्टीज़ भी होती है नॉन कंप्लायंस की, कि अगर आपने पॉश एक्ट की बात को नहीं किया है, बेसिकली अगर आपने कमिटी नहीं बनाई है तो 3 साल की परमिशन लग सकती है. लोगों को लग सकता है कि क्या इनफॉर्मल वर्क प्लेस भी कवर होते हैं? सो येस, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क प्लेस आर बीइंग कवर्ड, राइट. सो इनफॉर्मल का मतलब वही हो गया कि जो हमारे घर में डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं, राइट, जो हमें लगता है कि यार इन लोग तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, इनकी बात कौन ही सुनेगा, राइट. So even the domestic workers who are in the informal sector, even they are protected by the act. And the POSH Act also provides for the protection of the accused. So ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड है, मौका मिलता है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं ये लोग. एंड so now the point is that this act, I have told the features, this is not really applicable to the political parties. Now, as obvious as it may sound, this is not the case, and we have to examine why is the reason, right? So it is in this background that a PIL has been filed, that it should be applied, and even the Supreme Court is currently assessing the role and obligations of the political parties, right? So before we go into the reasoning that why it is not currently including political parties and why it should happen in the case going forward, so right, let's examine the POSH Act in detail. So it was enacted in 2013, right, like I told, and it mandates for the sexual harassment complaints, and it aims to protect the women and gives a definition for the workplace, right. However, there is a clarification on how the political parties should be under the mandate or not, because it basically lacks a traditional workplace structure. यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है. यहाँ पे वर्कर्स आते हैं, मतलब मेंबर्स आके चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है रोज़ आएंगे. जब पार्टी का टेन्योर ज़्यादा एक्टिव रहता है तब काम करते हैं. तो क्योंकि ट्रेडिशनल वर्क प्लेस की जो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वो इतनी तरीके से इन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, इसीलिए इस पर अप्लाई नहीं होता. और इसी के लिए केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दी थी कि क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इतना अच्छे से डिफाइन नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ अ केस वेयर वी कैन कंसिडर दैट इफ दे शुड बी एग्जेम्प्टेड और नॉट, राइट. तो इसलिए सो फार तो इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, इसलिए वो एग्जेम्प्टेड रहते हैं, राइट. एंड और भी चैलेंजेस रहते हैं, जैसे मैंने बताया डेफिनेशन की बात रहती है. एंड रोल्स अगर हमें पता ही नहीं कौन एम्प्लॉयर है कौन वर्क प्लेस में एम्प्लॉई है, तो ऑब्वियसली रोल्स क्लियर नहीं है ना. कुछ आज
जो नेता है वो कुछ और काम कर रहा है, कल को कुछ लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है, कल कुछ सोशल एम्पावरमेंट का काम कर रहा है, कल किसी एजुकेशन कैपेसिटी में काम कर रहा है. सो वर्क इज़ इन ट्रांजिएंट कैपेसिटीज एंड देयरफॉर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. सिमिलरली लोकेशन भी टफ है. तो पॉश एक्ट वैसे तो इंक्लूड करता है लोकेशंस फॉर प्रोटेक्शन विजिटेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे फील्ड एक्टिविटीज़ हो जाए, बट देन थोड़ी इशू रहता है वहाँ पे. पोलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में हेल्प क्लैरिफाई द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो थोड़ा बहुत अगर हमें आइडिया लगेगा तो इधर से हमें लगेगा. सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ पॉश बिकम्स टफ. एंड फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमने पॉश समझ लिया है कि वो क्या करता है, हमने ये समझ लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो क्यों नहीं लग सकता है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन है ही नहीं ऑल टुगेदर? विल दे गो स्कॉट फ्री? इज दैट द केस? सो देन द आर्टिकल सेज दैट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसको खुला छोड़ दिया है, थोड़ा तो इसमें आपके पास प्रोटेक्शन रहता है, राइट. और अभी हम बात कर रहे हैं, PIL आया ही है कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है. सो अगर हम बात करें आज क्या प्रोटेक्शन है तो वो हम समझ लेते हैं. थोड़ा बहुत इसमें ECI का रोल रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो इशू करते हैं एडवाइजरीज, ठीक है. बट अगेन इट लैक्स अ डिफाइंड अथॉरिटी फॉर इंश्योरिंग द अडेयरेंस. तो एडवाइजरीज तो इशू हो जाती हैं, लेकिन कोई डिफाइंड अथॉरिटी नहीं आती है. सिमिलरली वहाँ पे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी सी लैक रहती है, इन द सेंस दैट कमिटीज में लैक द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट्स. Similarly, they also manage their internal issues through their constitutions and existing committees without formal ICCs. So, all in all, इनके पास ICCs तो नहीं है, राइट. जो मैंने बोला था 10 लोग से ज़्यादा अगर हम करेंगे किसी वर्क प्लेस में तो ICC होंगे. एंड उनके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे हैं कि वहाँ पे मैंडेट नहीं होता है, और जो भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन है वो ECI के थ्रू होता है. सो गिवन दिस, द करंट स्ट्रक्चर वी हैव, where there is a very meager role of ECI in advisory capacity and not really in the form of a defined authority. Therefore, the PIL also gets a strong backing of getting the POSH Act in its mandate. So so far we are seeing that this is a very gray area where we have to check the applicability of laws, and clarifications will be needed in this case. So that is the matter for this. Next is the inflation concerns about the wheat and the edible oil इन इंडिया. सो हमें पता ही है कि हमारे एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है, एंड इसमें फूड एंड फ्यूल सब इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में वॉलेटिलिटी रहती है. सो इसमें वही बता रहा है कि अभी भी थोड़ा सा हमें लग रहा है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द वीट प्राइस. तो अभी ये 2900 जितना हो गया है पर क्विंटल, जहाँ ये पहले 2500 जितना के आसपास होता था. तो 400 रुपये पर क्विंटल वीट महंगा हो गया है, राइट. इसकी वजह से बेसिकली थोड़ा इन्फ्लेशन भी आया है, राइट. हम देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास. और ये क्यों हुआ है? तो जैसे मैं बताती हूँ कि एक डिमांड है और ये सप्लाई है, राइट. तो अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम है, तो अगर हमारी सप्लाई कम हो जाए, राइट, तो कर्व मूव्स अप, तो प्राइस बढ़ जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं. तो यही है, सप्लाई हमारी कम हो गई है, लाइक आई एम टॉकिंग ओवर हियर. सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है. तो वही हमारा प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है 3 सालों में, राइट. और इसलिए जो हमारा गवर्नमेंट का भी जो बफर स्टॉक था, अगर वो इतना था तो आजकल वो इतना हो गया है. तो सप्लाई इतनी कम हो गई है कि इसलिए डोमेस्टिक प्राइसेस बेसिकली बढ़ गए हैं. दैट इज़ द न्यूज़. सो इज़ दैट गोइंग टू बी द केस गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो? सो थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको न्यूज़ में बताया भी था कि राबी क्रॉप का कैसे इशू रहा है. शुरुआत में तो उनका सोइंग सीज़न इतना अच्छे से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द वार्म टेम्परेचर्स इन द कोल्ड सीज़न. हवेवर दिसंबर के बाद थोड़ा सा अपटेक हुआ है. सो अभी तो इंक्रीज एरिया भी हो गया है, राइट. फेवरेबल वेदर भी है, तो हमें लग रहा है बम्पर होए. तो there could be a good case, but still harvest will be available only by April 25. So there's still a case to watch for the period between December to April, right? So इतना detail में of course UPSC will not ask, but these details help you to crystallize the concept even further, right? That how the market dynamics create an issue, and when in the mains you get a twisted question, you have these arguments in your mind. आपको कुछ रटना नहीं है, आपके दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से आ ही गई हैं. तो अभी फिर गवर्नमेंट के पास क्या चैलेंजेस हैं? ऑफकोर्स सप्लाई कम है, तो हमारे पास बेसिकली प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम है, राइट. एंड मार्केट प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हैं ही. तो अब आप खुद बताइए कि जहाँ पे
मुझे 29 रुपीज़ मिलेंगे और जहाँ मुझे 25 रुपीज़ मिलेंगे, तो मेरे पास कोई सामान है तो मैं ऑब्वियसली 29 रुपीज़ वाले पे बेचना चाहूँगी। वाई शुड आई सेल इट एट लेस? तो अभी एमएसपी भी जो कि है वो 25 पर है और यहाँ पे मार्केट में हमारा 29 चल रहा है, तो फार्मर्स भी एमएसपी नहीं यूज़ कर रहे हैं, राइट? वो भी चाह रहे हैं मार्केट में बिक जाए। तो इसलिए ओवरऑल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एंड इसलिए अब हमें ये चेक करना पड़ा है, जैसे ये हमारा इंडिया है, राइट? तो अगर इंडिया में वही होता है, सप्लाई ना हो तो बाहर से सामान ले आओ, राइट? लेकिन बाहर में हमने टैरिफ्स लगा रखे थे, तो वही है कि हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि हमें टैरिफ को चेंज करना ही नहीं करना और बाहर से हमें लेकर आना है कि नहीं लाना, देखिए सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। सो दैट इज़ बेसिकली द न्यूज़। वीट के बारे में ऐसा है। साथ में ऑयल के बारे में भी हम देख रहे हैं, प्राइस बढ़ गया है। अगेन प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई कम हुआ होगा। अब सप्लाई कम क्यों हुआ होगा, वो फैक्टर्स हमें एग्जामिन करने होते हैं। वीट के केस में सप्लाई कम हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन जो कम हुआ है। ऑयल के केस में सप्लाई क्या हुआ है कि यहाँ पे अब ऑयल जो हम केवल फूड के लिए यूज़ कर रहे थे, अब हम इसको फ्यूल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। आपको पता ही है, हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो हमेशा डिबेट आती है फूड और फ्यूल की, क्योंकि फूड से डाइवर्ट होता है फ्यूल के लिए भी। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि अब बेसिकली आपको पता है ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया वगैरह, यहीं पे सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है फॉर फ्यूल। अब फ्यूल के लिए डाइवर्जन होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के लिए कम बनेगा तो सब प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये प्राइस हम इम्पोर्ट करके मंगवाएंगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है 13% की वजह से इसमें इन्फ्लेशन की इंक्रीज़ हुआ है। सो वही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं ऑयल मार्केट में। इस चक्कर में ऑफकोर्स अब सब्सटीट्यूट यूज़ करेंगे। पाम ऑयल महंगा हो गया तो सोया ऑयल यूज़ कर लो, राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कर लो, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लो। तो इसलिए स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है ओवरऑल। हमने तो कंज्यूमर हैज़ अ वेरी टाइट पॉकेट, तो वो महंगी चीज़ खरीदने की जगह सोचेगा कि इसका कोई ऑल्टरनेट खरीद लो, right? So therefore it is saying that preferences have increased in this segment and even the government interventions are needed. So this is the article. Now in this question I want you to solve it by yourself using the tricks that we have been learning these days, and post the answer in the comment box. I'll let you know about the answer tomorrow. And this is the question for mains: what are the causes for the persistent high food inflation, and comment on the effectiveness of the monetary policy. So please let us know your feedback and post these answers on Telegram. We'll be happy to give you feedback. That is it for today. Thank you and have a great day.